ایکسیسو پاپولیشن بہت ساری پرابلمس کا جڑ ہے اینڈ اٹ شوڈ بی پریکٹس. فیملی پلاننگ ڈیفینیٹلی شوڈ بی پریکٹس اینڈ یہاں پر اس کے بارے میں بات کرنا آئی ڈونٹ تھنک میں مناسب سمجھ رہی ہوں. بٹ آف کورس آئی ایز اے پرسنل اوپینین یس آئی بلیو دیٹ فیملی پلاننگ از اے مسٹ اینڈ اسپیشلی فار اے کنٹری وچ از اوور پاپولیٹڈ. I just think, پانچوں انگلیاں ایک طریقے کے ہو نہیں سکتے. You're going to have all kinds that make the world and just, concentrate on the positives. I think India is a great country. I love it. I feel very, very proud to be Indian, to represent my country anywhere in the world. So these things happen everywhere. So at least there should be tax on the third child. بھول گیا. اور جن کو انسان یاد رکھتا ہے ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا اس کے لیے. یہ تمہیں اولاد کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے. روکی فیملی پلاننگ والوں نے ہے. دینے والا کون ہے؟ محبت فیملی پلاننگ والوں سے ہے اور اللہ سے محبت جو روک رہے ہیں تمہیں نعمت سے ہیں بھائی. ارے بھائی جو تمہیں روک رہے ہیں, تمہارے اگر 6 7 8 بچے نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ ماحول خراب کر دیا نا ڈرامہ فلموں کے ذریعے. جنہوں نے تمہیں نعمت سے روکا ان کے نظریات کو سلوٹ کرتے ہو. اور جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے دھڑا دھڑ بیٹیاں ہبا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے دھڑا دھڑ بیٹے ہبا کرتا ہے. او یزوجہم ہبا کا لفظ ہے, ہبا گفٹ کو کہتے ہیں. اولاد اگر مصیبت ہوتی ٹینشن ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال. ارے بول لیا کرو, جملہ مکمل کیا کرو بھائی. برداشت کر لو, میرا یہ تکیہ کلام بن چکا ہے, برداشت کر لیں. اور اس لیے بنا ہے کہ مجبوری میں بنا, اس کی بھی پیچھے کوئی شان نزول ہے اس کا. تو دیکھو اولاد اگر ٹینشن ہوتی مصیبت ہوتی تو اللہ یہ نہیں کہتے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے, بیٹی نہیں. گھر جب بنتا ہے جب بیٹی نہ ہو بلکہ گھر میں بیٹیاں ہوں. ایک بیٹی سے گھر آباد نہیں ہوتا, گھر میں بیٹیاں ہوں. کم سے کم 3 کے لفظ پر بیٹیوں کا لفظ عربی میں صادق آتا ہے, کم سے کم. تو 2 بیٹیوں کو بھی اللہ نہیں مان رہے یہاں اس آیت میں. کم سے کم کتنی ہو؟ کم سے کم, یہ کم از کم ہے. آگے جتنی ہو اللہ کی نعمت ہے. فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, بیٹا نہیں. کیا دیتا ہے؟ بیٹے, الف بے پے تے ٹے, ٹھیک ہے. بیٹے کا لفظ پلورل ہے, عربی میں کم از کم 3 پہ صادق آتا ہے. کم سے کم 3 بیٹے ہوں, کم سے کم ہے یہ. یعنی یہاں سے نعمت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ کے ایسا گفٹ کرتا ہے, کسی کو صرف بیٹیاں دے دیتا ہے, اس کا گھر بھی اللہ نے آباد کر دیا. اس کو بھی خوشیاں دے دیتا ہے کہ بیٹیاں ہیں گھر میں. جب جائے گا خوشی ہوگی گھر دیکھ کے. جب بچیاں ہوں گی تو کھیلتی ہوں گی, باپ سے محبت کریں گی. بڑی ہوں گی تو باپ اور ماں کی خدمت کریں گی, ساری زندگی یاد رکھیں گی, دعائیں مانگیں گی مرنے کے بعد. اور 3 اس لیے 3 یا 3 سے زیادہ کیونکہ بیٹیوں کو بہنوں کی ضرورت بھی تو ہے. ارے یار پولیس کو بلاؤ بھائی, آج تو بہت غصہ آ رہا ہے یار. گوشت کھا کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پھر بھی آپ لوگ کے چہروں پہ کیوں مرجھا رہے ہیں؟ دیکھو بیٹیاں کا اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بیٹی کو بھی تو اپنی بہن کی ضرورت ہے یا نہیں. آپ کی بیٹی ہر وہ بات والدین سے شیئر نہیں کر سکتی جو اپنی بہنوں سے شیئر کرے گی. اگر اس کو بہنیں نہیں ملیں گی, محلے کی لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے خراب ہوگی, کیونکہ محلے والیاں خراب کرتی ہیں اور بہنیں لائن پہ لانے کی کوشش کرتی ہیں. بہنوں کا رشتہ غیرت والا ہوتا ہے, دوستیوں کا رشتہ غیرت والا نہیں ہوتا. محلے میں کسی کا چکر ہے نا, وہ کہے گا کہ تو نے کیوں نہیں بوائے فرینڈ پالا ہوا, اور بہنیں اس کو چھپاتی ہیں. غیرت ہے, ختم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو کم درجے کی نعمت اللہ نے بیان کی, بیٹیاں دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے بیان کیا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, اس سے بھی زیادہ کسی پر احسان کرنا ہو تو صرف کیا دے دیتا ہے؟ بیٹے دے دیتا ہے. بیٹے ہی بیٹے. بیٹوں سے گھر تو آباد نہیں ہوتا, لیکن بیٹے باپ کا بازو بنتے ہیں, کاروبار میں, بزنس میں, بہت ساری چیزوں میں. جب بیٹے ہوں تو محلے والے ابا کی طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے, اگر وہ واقعی بیٹا ہی ہے, سمجھ رہے ہو, غیرت ہے اس میں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا عجیب سے ہیں مگر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں بیٹوں کی وجہ سے. بولے بھائی اس کے بیٹے جوان ہیں, مجبوراً اس قسم کے ابا کو برداشت کیا خیال ہے کرنا پڑتا ہے, بیٹے کھا جائیں گے. غیرت ہو تو غیرت کی بات کر رہا ہوں بھائی, غیرت ہی نہ تو پھر جو مرضی ہو. تو اللہ نے فرمایا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, گھر آباد کر دیتا ہوں. جس کو چاہتا ہوں
बेटे दे के घर आबाद कर देता हूं, यानी आला दर्जे की नेमत है। और फरमाया सबसे आला नेमत किसी पर करनी हो, युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, बेटे भी देता हूं और बेटियां भी देता हूं। इसलिए मैं कहता हूं औलाद का निसाब जो सिलेबस है ना, जो औलाद एक नेमत है, कम से कम 3 बेटे हों, कम से कम 3 बेटियां हों। तो अब यहां से इब्तिदा हो रही है औलाद की नेमत की। ये कम से कम है कि आपको कम से कम औलाद मिल गई। इससे पहले जो कम है, अगर 3 से कम बेटियां या 3 से कम बेटे, तो आपको औलाद की नेमत तो मिली, अगर मगर ये यानी ये अभी फितरत जो चाहती है ना, जो नेमत आपको देना चाहती है, अभी आप उसकी पहली सीढ़ी पर भी, बोलो ना भाई, नहीं पहुंचे। 3 बेटे इसलिए कि जैसे आपको बेटों की जरूरत है, बेटों को भाई की भी, बोलो भाई, जरूरत, और आपकी बेटियों को भी भाई की जरूरत है। आप मर जाओगे फिर दामाद सताएगा। जब तक जिंदा थे तो दामाद से थोड़ी टेढ़ी आंखें दिखा दिया करते थे, मरोगे तो कौन संभालेगा? आपका जो दामाद है वो किससे डरेगा? सालों से डरेगा, अपने बीवी के भाइयों से डरेगा। क्या हो गया? सही नहीं कह रहा क्या? गलत कह रहा हूं? आप भी तो डरते हो, जो बीवी के हुकूक अदा कर रहे हो भाइयों की वजह से तो कर रहे हो। उन्होंने टांगे, तू कोई मुतहदा में है, डर रहे हो आप। अल्लाह से डर के कौन हुकूक अदा करता है आजकल? मैं वालिदैन को बोलता हूं तुम्हारे बेटियां हैं तो इनको कम से कम देखो, ये कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। किसी को नहीं मिली औलाद, ज़करिया अलैहिस्सलाम को नहीं मिली, वो अल्लाह की तरफ से है। खुद से औलाद मत रोको, पछताओगे बुढ़ापे में, घर आबाद नहीं होगा। घर दीवारों से आबाद नहीं होता, बंगलों से, सोफों से आबाद नहीं होता। अफराद पहले हैं, सोफे, बेड, अलमारियां, ये बात की चीजें हैं। ये सोफे बेड तो होटलों में भी होते हैं, तो घर लेने की क्या जरूरत है भाई? जाओ सदर में इतने महंगे महंगे अच्छे अच्छे सस्ते होटल भी मिल जाएंगे, वहीं रात गुजारा करो। वहां डबल बेड भी है, अलमारियां भी हैं, और वॉशरूम भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, नलके भी स्टील के हैं, शावर में पानी भी है। यहां ला ला के टैंकर डलवाना एक टेंशन, वो टैंकर फिर पूरी गली को रोक के खड़ा हो जाता है, गुजरने का रास्ता ही नहीं, गाड़ी लेकर आ रहे हो, उधर से मुड़े, उधर उधर एक और टैंकर खड़ा हुआ है वहां पे, तो क्या जरूरत है? घर की डेफिनेशन ये है कि उसमें अफराद हों, और अफराद तो शादी हॉल में भी होते हैं, जब आप जाओ बहुत जलसे में भी होते हैं। वो अफराद आपके खून हो, आपका ब्लड हो, आपकी आल औलाद हो, आपके बीवी बच्चे हो, बहुएं हो, पोते हो, नवासे हो, बेटियां हो, इसको घर बोलते हैं। 2 बच्चे ही अच्छे नहीं है इस्लाम में। अल्लाह की तरफ से किसी को 2 मिल गए तो एक अलग बात है, नहीं हो रहे, लेकिन ये देखो, तुम्हें मौलवियों के अलावा ये बातें कोई भी नहीं बताएगा। ये जो दुनियादार लोग हैं, ये तुम्हें तुम्हारा सुकून तुमसे छीन रहे हैं। सुकून सिर्फ नेचुरल लाइफ में अल्लाह ने रखा है। नेचुरल लाइफ से हटोगे, सुकून की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये अय्याशी जवानी की थोड़े दिनों की अच्छी लगती है, उसके बाद तबाही है, बर्बादी है। और अगर अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी, बुढ़ापे तक खुश रहोगे। मैंने किसी आल औलाद वाले शख्स को इतनी टेंशन में नहीं देखा। छड़े छाट और कम जिनके खानदान है उनको ज्यादा टेंशनों में देखता हूं मैं, खुशियां ही नहीं है। देखो बकरीद पर जिनकी औलाद है वो ज्यादा मजे से बकरीद मनाते हैं, ये बगैर औलाद वाले। ईद बकरीद का तो मजा ही बच्चों के लिए है। रिश्तेदार हो, उनकी दावत हो, उनके गम में शिरकत हो, उनकी खुशियों में शिरकत हो। रिश्तेदारियां शार्ट होती जा रही हैं, नस्ल खत्म हो रही है। अब अगली नस्ल में चच्चा मामू शार्ट होंगे मार्केट से, क्योंकि दादा ने की औलाद ही नहीं होगी। तो आप बच्चों से पूछेंगे आपके अब चच्चा कहां, कह रहे हैं वो तो हुए ही नहीं थे। है भाई, वो तो हुए ही नहीं थे। यार तुम्हारे कजन, भाई कजन इसलिए नहीं कि फुप्पी ने शादी 45 साल में की है। फुप्पी की शादी कब हुई थी? 45 साल। तो अभी तक रिपोर्ट नहीं है किसी कजन की। हो सकता है 15-20 साल में कोई कजन हो गया तो हम भी माशरे में फख्र से बताएंगे हमारे भी क्या है। ये देर से शादी के नुकसान और नस्ल रोकने का। अभी मैं कोयटा से होके आया हूं, पठानों की बड़ी बड़ी फैमिलियां होती हैं, घर जाओ खुदा की कसम मजा आता है। मैं पंजाब भी गया हूं, बड़े बड़े 1000 गज के बंगलों में दीवारें हैं, बंदे नहीं हैं। करोड़पति लोगों के घरों में, अरबपति लोगों के घरों में गया हूं मैं, रहा भी हूं 2-2, 3-3 दिन। 10-10 कमरे होंगे, बड़े लग्जरी वॉशरूम बने हुए हैं, ऐसे स्टील के नलके, और ये शावर है, खड़े हो जाओ बस, बैठ जाओ यहां पे, ऐसा मुलायम पानी बरसेगा। कितनी देर बरसेगा भाई? ये टब है, इसमें नहाना चाहो इसमें भी नहा सकते हो। ये बेड है, ये एसी है, ये नौकर है, बटन दबाओ। जब मुफ्ती साहब जो चाहिए ना बटन दबा दिएगा। खुदा की कसम फिर भी मजा नहीं आ रहा। भाई बंदे कहां हैं? बंदे वो अब्बा हैं, वो उधर बैठे हुए हैं कोने में,
बूढ़े हो गए, एक अम्मा है वो वहां बैठी हुई हैं, कभी कभार दोनों आपस में सलाम दुआ कर लेते हैं, क्योंकि वो बुढ़ापे में क्या बातें करें एक दूसरे को, माइंड कर जाते हैं। जब भी कोई बात करते हैं बुढ़ापे में तो क्या कर जाते हैं, माइंड कर जाते हैं। यानी अम्मा ने कोई ऐसी बात कर दी, अब्बा को बुढ़ापे में गुस्सा आ गया, अब्बा ने कर दी अम्मा को। और कौन है भाई, मैं बेटा हूं, एक आध बहू है, दूसरे बेटा है, वो बहू है वो अमेरिका में है। पठानों के घर जाओ ना, कोयटा में या पेशावर में, मजा आता है यार। एक की दावत होती है 20 ग्रेवी में। अभी मैं जिनके घर गया, मैंने कहा ये मेरी दावत थी, तो ये पूरी पब्लिक कह रही है, पब्लिक साहब हमारी आल औलाद है, मेरे भाई हैं, उनके बेटे हैं, बहुए हैं, दामाद हैं, दादे भी जिंदा हैं, परदादे भी जिंदा हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी शादियां करती थी, जवानी में दादे बन गए और परदादे बन गए। हमारी उम्र में जिस वक्त बंदा बाप बनता है ना, पठानों के यहां परदादा बन चुका होता है वो। लेकिन पठान भी यहां आके क्या हो रहा है अब, बोलो भाई, खराब हो रहा है। कराची में चाइना का पठान मिलेगा आपको, ये ओरिजिनल जापानी, बोलो भाई, नहीं है। ये भी यहां के वही माहौल बनता जा रहा है। खुशियां इसे, आप कहेंगे यार गरीबी में इतने लोगों को खिलाना पड़ता है, ये तो खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो भाई वो भी तो खिलाते हैं, वो भी तो खिलाएंगे आपको, मुसीबत में काम आएंगे, आपके रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्ते हैं, जितना मर्जी नफरतें हों, लेकिन आपको मदद हकीकी मानों में और मोहब्बत हकीकी मानों में मिलेगी कहां से, रिश्तों से, बहनों से मोहब्बत मिलती है। और खुदा की कसम बहनों पे खर्च करने का मजा है। बहनें ही शार्ट हैं, औलाद ही नहीं है तो बहनें ही नहीं है। भाई बहनों पे खर्च करता है, कैसा दिल खुश होता है, कितना मजा आता है। हम देखते थे कि जब फैमिलियां बड़ी होती थी, अपनी बहनों पे भी, कजनों पे भी खर्च कर रहे हैं।